Hello students, today in this class, in the chapter differentiation of class 12th, let us see what is exponential function and logarithmic function. Now, what is exponential function? A function in the form of f of x equal to some constant number raised to the power x. F of x means y equal to some constant b raised to the power x, like this. Here this x is independent variable, y is dependent variable. Here the power is the variable. See here, some constant raised to the power variable, where b is greater than 1 is called an exponential function. Now the question arises here, why here b is greater than 1? Why it should be b is greater than 1? See what happens. If first case, if b equals to 1, then b equals to 1 means 1 raised to the power any number gives us only 1, that is y equals to 1. So you will get a straight line like this, y equals to 1 की line मिलेगी आपको, है ना? So that will not be an exponential, it will be constant like that, y equals to 1 always. Okay, now if suppose this b is negative now, if b is negative number, then what happens? If b is negative, so y raised to the power, suppose minus 2 raised to the power 2 and y raised to minus 2 raised to the power 3. Now here this value depends on this powers. If it is odd number, if it is even number, minus 2 raised to the power 2 means even number, power is even, so you will get answer plus 4. And if this power is odd number, then you will get here it is minus 8. This will be minus 8, right? It means here you are getting plus numbers and as well as minus number. So value of y, making it impossible to join the points obtained at any meaningful way and certainly not in a way that generates a curve. तो एक प्रकार की कर्व हमको ड्रॉ करने के लिए it will not be possible. Direct plus value y की direct negative आ रही है, so it will not be possible. So in that case we avoid this b equals to 1 and b is less than that is negative number. So यहाँ पे greater than 1 होता है. Okay, now see here our function is y equals to b raised to the power x. So b is any constant number. Okay, x is independent variable, y is dependent variable. So now here I have a freedom that I can put here any value, any real number. You can put plus, positive or negative. You will get answer of y. You can put any number of x here. Here variable x you can take negative as well as positive. It means यहाँ पर जो फंक्शन का डोमेन है x की वैल्यू मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो एनी रियल नंबर. यू कैन पुट हियर एनी x, बट व्हाट हैपेंस इफ इट इज x इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव रहने दो या नेगेटिव रहने दो, what will be y? See here, suppose y raised to the power some number, suppose 2 raised to the power x is suppose 3, positive number, and y equals to 2 raised to the power minus 3. Once you take positive number here x, once you take negative number here x, so here you will b raised to the power this is minus 3. So you will get the number. अब कौन से नंबर पे लेके देखो आपको b रेस्ट टू द पावर x. तो यहाँ पे देखो x आप कोई भी रखो, so x कोई भी रखो, आप +2 रखो या -3 रखो. तो here y will be 8, here y will be 2 raised to the power -3. It means 2 raised to the power -3 can be written as 1 upon 2 raised to the power 3, right? Means 1 upon 8. So this is also positive number. 2 raised to the power -3 is positive number. Here it is also positive number. Therefore we can say that the
range of the function is always positive are here, real positive. So एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो डोमेन होता है, यहाँ x की वैल्यू वो any number, any real number you can put here, whereas y is always positive real number. Okay, so you remember this. Now here, see here, this graph, if I put here x equal to, suppose you put here 0, y equals to b raised to the power 0, means any number raised to the power 0 means it gives us 1. So y will be equal to 1. Therefore, such type of function, exponential function, always passes through the point 0, 1. पहला पॉइंट तो आपका 0, 1 हो गया. देखो एक पॉइंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का y इक्वल्स टू, यहाँ पर बेस कोई भी रहने दो, b raised to the power x. Point definitely it will be 0, 1. If I put it x equal to 0, y equal to b raised to the power 0 means 1, y equals to 1. So that exponential function always passes through 0, 1 point, है ना. अभी देखते हैं, सपोज यहाँ पर मैं माइनस रखता हूँ, y equal to b raised to the power, या you take one example, see here, y equals to 2 raised to the power x. Okay, so if I put x equal to 0, so you will get 0, 1. This is exponential function, it will pass through 0, 1. And if y equals to 1, x equal to 1, 1, so point will be 1, 2. If x equal to minus 1, point will be half, है ना, that is minus 1 and half. So ग्राफ कैसे बनेगा आपका, देखो 1, 2. ग्राफ अगर पॉजिटिव x है तो ग्राफ इधर जाएगा आपका. अगर आप x नेगेटिव लेते हैं, सो द वैल्यू आर गोइंग टू बी डिक्रीजिंग हियर. y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव रहेगी, y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में इट विल डिक्रीज, बट y कैन नॉट बी 0. यहाँ पर y की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती है. b का पावर आप यहाँ पर कोई भी नंबर दे दो, यहाँ y इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिकॉज b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी रखो, y 0 नहीं हो सकता. सो दिस कर्व नेवर टचेज दिस x एक्सिस, क्योंकि जहां पर x एक्सिस को टच करेगा वहां पर y कोऑर्डिनेट इस कर्व का 0 बनेगा. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, y इक्वल टू 0 हमको कभी नहीं मिल सकता. तो ये जो लाइन आपकी x एक्सिस की, इसके साथ में ये सीधा पैरेलल ग्राफ चलेगा, लेकिन इस x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, पैरेलल चलेगा. सो दिस इज वन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ आई एम रिप्लेसिंग, जैसे कि हमने देखा b इज अ कांस्टेंट नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 1. So I am taking, instead of b here, I am writing e raised to the power x, because you know that e is equal to 2 point something होता है, 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus this term gives us e, that is 2.30 something, है ना. You have learned this in class 11 in the physics also. Okay, e. So if I replace this constant number b by e, okay, so here this function, ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम अभी यहाँ पर देखो, x डोमेन है, y रेंज है. अब इसको मैं लॉग में लिखता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8 होता है. दिस इज एक्सपोनेंशियल, सो आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, सो दैट विल बी लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 होगा. मीन्स लॉगरिथम का फंक्शन जो है हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर देता है. लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का हमको यहाँ से पावर मिलता है, जबकि यहाँ पर इसका वैल्यू मिलता है एक्सपोनेंशियल की. 2 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 8. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस 2 क्यूब, है ना. हियर वी आर गेटिंग द पावर, दिस इज डिफरेंस. ओके, नाउ सब अब यहाँ पर इफ आई राइट हियर फर्स्ट वन, y इक्वल्स टू b रेज्ड टू द पावर x, या b रेज्ड टू द पावर x इक्वल्स टू y. दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ राइट दिस इन लॉगरिथम. सो log ऑफ y टू द बेस b इक्वल्स टू x हो जाएगा, राइट. अभी यहाँ पर देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो डोमेन था फंक्शन का वो x था एक्सपोनेंशियल का, y रेंज थी. तो यहाँ ये जो है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर कोई भी रख सकते हैं. ये जो y है ये पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, क्योंकि इसका जो आंसर आप x चाहे पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, b का पावर नेगेटिव और पॉजिटिव, यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. सो ये जो y है इस फंक्शन का रेंज वो हमेशा रियल नंबर होता है, जबकि पॉजिटिव रियल नंबर होता है,
जबकि डोमेन जो है x की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते, रियल नंबर होता है। इसलिए मैंने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो डोमेन जो होता है एनी रियल नंबर होता है, उसका रेंज जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था आपका b रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y इक्वल, इसको हम ऐसा लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस b इक्वल्स टू x। अभी क्या हो रहा है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ y की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसा आपको x इसका वैल्यू मिलेगा। सो log ऑफ y टू द बेस x इक्वल टू x मींस यहाँ पर डोमेन जो है y बन गया, जबकि यहाँ पे रेंज थी, इस फंक्शन की रेंज थी वो यहाँ पर डोमेन बन गया है, और इस फंक्शन का डोमेन था वो इस फंक्शन का रेंज बन गया है। तो यहाँ पर जो y था वो r पॉजिटिव था, तो इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन भी ये जो y है वो पॉजिटिव रहेगा। मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन जो है वो r पॉजिटिव होगा 2, और इसका जो रेंज है, इसका आंसर मीन्स x, दैट इज ऑलवेज रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वो x यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे हम फंक्शन देखा हमने sin x इक्वल टू y, तो यहाँ पे ये sin x मीन्स एंगल है, दिस इज एंगल, एंड ये जो है वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज आती है y, जैसे इनवर्स फंक्शन जो होता है इसका साइन का, दैट इज डोमेन इज -5, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 होती है, और उसका वैल्यू -1 to 1 होता है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 होता है, और y जो है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, अब इफ आई टेक दिस इनवर्स, इसका अगर इनवर्स लेता हूँ मैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर जो y है, अभी साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन बन गया a, इसका इनवर्स हो गया, तो ये जो y है आपका वैल्यूज होगी क्लोज इंटरवल -1 to 1, और इसका जो आंसर बनेगा रेंज, इस फंक्शन की रेंज वो एंगल्स बनेंगे। तो अभी साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा डोमेन में वैल्यूज रहेगी, लेकिन x और y को हम दैट इज लेटर, तो मैं इसको ऐसा भी लिख, जनरली हम ऐसे लिखते हैं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, राइट। तो यहाँ पर जो x है ये वैल्यूज है -1 to 1 के क्लोज इंटरवल की, and this gives us the range of the sine inverse function, gives us the angle here, where a domain x that belongs to closed interval -1 to 1 होता है ना। वैसे ही ये जैसे आ गया कि यहाँ पर log of y to the base b इक्वल्स टू x है, y इसका डोमेन है, x रेंज है, तो हम जनरली रेंज y से डिनोट करते हैं, डोमेन x से डिनोट करते हैं, तो इसको जनरलाइज हम इसलिए ऐसा करेंगे log of x to the base b इक्वल्स टू y। तो लॉग फंक्शन का जो डोमेन है ये, दिस इज डोमेन, नाउ दिस y बिकम्स रेंज, तो यहाँ का जो डोमेन है, यहाँ का डोमेन, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, और डोमेन यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन मीन्स ये जो x है यहाँ पे एक्चुअली वो यहाँ का y है, यहाँ का जो रेंज है, यहाँ पे उसका डोमेन बन गया है। तो यहाँ पर r पॉजिटिव था, सो दिस इज r पॉजिटिव, है ना, r पॉजिटिव, और इसकी जो रेंज होगी, रेंज ये जो आंसर है, ये y, लेकिन ये जो y था एक्चुअली ये x था, इसको इस तरह से लिखा तो x था, x कैसे था यहाँ पर, x एनी रियल नंबर था, सो एनी रियल नंबर से r। ओके, देयरफॉर लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है r+2 रेंज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो लॉग फंक्शन का जो डोमेन रहेगा दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, यू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ जैसे हम ऐसे लिखते हैं 2³ इक्वल्स टू 8, इसको लॉग पे लिखिए, log ऑफ 8 to the base 2 इक्वल टू 3, है ना। अभी यहाँ पर जैसे मैंने b रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू y लिखा, ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको लॉग में लिखा, log ऑफ y टू द बेस b इक्वल्स टू x, रेंज यहाँ पर डोमेन बन गया, डोमेन यहाँ पे रेंज बन गया, इसका मतलब इस फंक्शन का ये इनवर्स फंक्शन हो गया।
So you remember that logarithmic function is always the inverse function of exponential function. एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका इनवर्स जो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, इस बेस b को हम e से रिप्लेस करेंगे, e इज आल्सो कांस्टेंट नंबर, सो y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक आई कैन राइट दिस log ऑफ y टू द बेस e इक्वल्स टू x, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये इसका इनवर्स हो गया है, इस फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन। तो y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का ग्राफ ऐसे आएगा, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। देयर आर मिरर इमेजेस, ये जो y इक्वल x इक्वल टू y की लाइन है ये मिरर इमेजेस, तो ये इधर आएगा ऐसा एक्सपोनेंशियल, उसका मिरर इमेज इनवर्स इस तरह से आएगा। सो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट logarithmic function is the inverse of exponential function, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अभी यहाँ पर एक देखते हम कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है। जैसे यहाँ पर क्या था हमारा b raised to the power x equals to y, this is exponential, and log of y to the base b इक्वल टू x, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस ग्राफ में ये वाला जो ग्राफ है ये कैसे बिहेव करता है देखते हैं। इसमें हमेशा जो पहला वाला ग्राफ है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमेशा 0 1 में से जाएगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो, इट विल ऑलवेज पास थ्रू 0 and 1। डोमेन जो होगा इसका आर एनी रियल नंबर, फिर रेंज जो होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, 0.01 में से जाता है ऑलवेज, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, ये हमेशा y की वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है, और इधर फिर x इक्वल टू 0 से कम किया तो इधर y की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन इसको कभी भी टच नहीं करेगा, x इक्वल y x एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। It will go parallel with this x-axis, touching to 0. It tends to 0 but never 0, y coordinate. Okay, so for very large negative values, the exponential function is very close to 0 जाएगा। In other words, in the second quadrant, the graph approaches x-axis but never meets it. So this is about the exponential function. Now, if you draw the graph of this function, logarithmic function, this will be the graph of logarithmic function. Here this logarithmic function always passes through the point 1 0, 1 और 0 में से जाती है हमेशा, हाँ ये एक पॉइंट याद रखना 1 0। और उसका जो ग्राफ है, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसका जो रेंज होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x, यहाँ पे x कोई भी हो सकता, वो यहाँ पर x आ गया, एनी रियल नंबर, इसका रेंज, इसका डोमेन यहाँ पे y है, सो डोमेन इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन जो होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। द लॉग फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग, दैट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द ग्राफ राइजेस अबव, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ तो y कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऐसे बढ़ेगा, ठीक है ना, और जैसे नीचे जाओ वैसे वैसे वो डिक्रीज होते जाएगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज द मेन डिफरेंस। सो स्टूडेंट, ओनली यू रिमेंबर दैट दिस लॉगरिथमिक फंक्शन is the inverse function of exponential function. Okay, so if 2 cube is equal to 8, if this is exponential function, so इसका जो inverse होगा log of 8 to the base 2 equal to 3, this will be the inverse function of this function। यहाँ पर range 8 है, यहाँ पे domain 8 बन गया, range यहाँ पर 3 बन गई, यहाँ पे domain 3 था, range 8 था, यहाँ पे domain 8 हो गया, range 3 होगी, ठीक है। So this is the main difference. Okay, thank you.